Guys, welcome to chapter number 3. It says collection of data. Well, our first topic is primary data. Well, it refers to the data which is originally collected by the investigator or an agency for the first time for some specific purpose. तो प्राइमरी डेटा बेसिकली वो डेटा है जो पहली बारी कलेक्ट किया गया हो, जो ओरिजिनल हो इन नेचर. Well, it is also known as first-hand information. For example, data on poverty collected by NSSO, that is National Sample Survey Organization. Secondary data. Well, the data which is obtained from the published or unpublished sources is known as secondary data. Basically, secondary data एक second hand data है जो आपने खुद नहीं compile किया है या खुद नहीं बनाया है. You are just using the data which has been compiled by someone else, either published or unpublished. It is also known as second-hand data. For example, national accounts data published by CSO, that is Central Statistics Office. Well, what is the difference between primary and a secondary data? क्लास में बहुत सारे एग्जाम्पल भी आपके साथ डिस्कस कर चुके हैं, तो ये एक ब्रश अप वीडियो है आपके लिए. Primary data are original as they are collected by the investigator or agency. Well, these are not original as investigator makes use of the data collected by other agencies or other personnel. Source, it is collected by some agency or person using a particular method of data collection. मैं भी आपको बड़े सारे मेथड बताऊंगा प्राइमरी और डेटा कलेक्ट करने के. Well, these data are already collected and processed by some person or agency and is ready for use. It takes longer time क्योंकि आपको खुद कलेक्ट करना है. It requires less time क्योंकि आपको आई एम सॉरी बट जस्ट कॉपी करना है. इट रिक्वायर्स अ कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ मनी एंड पर्सनल. आपको बहुत सारे बंदे लगाने पड़ेंगे अपने, कैसे अभी आप ड्यूरिंग जब मेथड्स में बताऊंगा आपको पता चलेगा, और पैसा भी इसमें काफ़ी लगता है. इट इज़ चीपर एज इट इज़ जस्ट टेकन फ्रॉम द पब्लिश और अनपब्लिश सोर्सेज. इट इज़ मोर रिलायबल एंड सुटेबल टू द इंक्वायरी एज द इन्वेस्टिगेटर हिमसेल्फ कलेक्ट्स इट. अगर मैं खुद कोई डेटा कलेक्ट कर रहा हूँ तो ऑब्वियसली मेरे को उस पर ज़्यादा ट्रस्ट होगा, रिलायबिलिटी का क्वेश्चन ज़्यादा होगा. वेल, इट इज़ लेस रिलायबल एंड लेस सुटेबल एज someone else has collected the data which may not serve our purpose. तो डेटा तो आपके पास है, बट क्या पता उसने जिसने डेटा कलेक्ट करा उसका पर्पस क्या हो, उसने किस माइंडसेट से डेटा कलेक्ट किया हो, और मे बी जो आपका पर्पस है शायद वो डेटा फुलफिल ना कर पाए. अब हम आपको सिखाते हैं मेथड्स ऑफ कलेक्टिंग प्राइमरी डेटा. तो सबसे पहले है डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन और कॉल्ड पर्सनल इंटरव्यू. Well, under this method, the investigator collects data by having direct contact with the informant and conducts on-the-spot inquiry. The investigator goes to the field personally, contacts the respondents, and convinces them in giving the information under study. The interviewer can request the respondent to expand on answers that are particularly important. अब आप सीधे सीधे जाते हो और लोग से सवाल पूछते हो पर्टिकुलर चीज़ के बारे में, और अगर आपको कोई बहुत ही इंपॉर्टेंट लगती है ज़्यादा चीज़ तो उसके बारे में आप ज़्यादा समय लगा सकते हो और ज़्यादा फोर्स कर सकते हो इन अ वे जो सामने वाला है उसको आंसर देने के लिए. The visual reactions of the respondents can provide supplementary information. Absolutely. आपको पता लग सकता है एक फेशियल एक्सप्रेशन से, जेस्चर से सामने वाले के, इज ही enjoying your company or not, और कई बारी तो ये भी पता चल सकता है कि झूठ बोल रहा है या सच बोल रहा है. Well, for example, Airtel wishes to conduct a statistical inquiry regarding internet use by young people in North Delhi. Here, Airtel will have some investigators who will be approaching people and collecting data, obviously on behalf of Airtel. Merits. Well, original होता है ये. So the data collected is original. Flexibility. This method is flexible as the investigator can change the nature of question according to the situation. अब मेरा बच्चा not only the nature of question but the way you ask that also can be changed. For example, कोई बुजुर्गवार हैं आपके सामने जिनसे आप डेटा कलेक्ट कर रहे हो, तो you can go slow. आप उनकी भाषा में इस्तेमाल कर सकते हो, अंग्रेजी में ना ज़्यादा बात करके, if that guy is not comfortable with English. So flexibility देता है आपको ये मेथड सामने वाले की नीड के अनुसार. यूनिफॉर्मिटी. इट प्रोवाइड्स यूनिफॉर्मिटी इन कलेक्शन ऑफ इन्फॉर्मेशन, क्योंकि ऑलमोस्ट एक पर्टिकुलर पर्पस के लिए आप डेटा कलेक्ट करने गए हो तो यूनिफॉर्म डेटा ही आपको मिलेगा बेस्ड ऑन सम स्पेसिफिक एंड यूनिफॉर्म इन्फॉर्मेशन. Reliability and accuracy. Well, this method facilitates collection of authentic and reliable information. The first-hand information obtained by the investigator himself is bound to be more reliable and accurate. Well, that makes sense. Economical. Well, this method of collecting data is economical, but if the field of investigation is limited. Other information. Well, some other information may also be collected along with the regular information which may be helpful in future investigation. कई बारी क्या होता है, आप इतने टेक्टफुल होते हो एज इन्वेस्टिगेटर कि आप और इन्फॉर्मेशन भी निकाल लेते हो और जो आप आगे फ्यूचर पर्पसेस के लिए इस्तेमाल कर सकते हो. Next है demerits. Not suitable for wide areas. Well, not suitable when the area of coverage is considerably wide or when many respondents are to be contacted. एक्सपेंसिव एंड टाइम कंज्यूमिंग. अगेन ये अगर फील्ड ऑफ इन्वेस्टिगेशन इज लार्ज हो, पर्सनल प्रेजुडिस हो सकता है. सपोज जो इन्वेस्टिगेटर है
अगर वो खुद ही बाइस्ड है या प्रेजुडिस है किसी चीज़ को लेकर, तो हो सकता है कि वो गलत इन्फॉर्मेशन दे। फॉर एग्जाम्पल देखिए, डोंट टेक माई अदर माई थिंग इन अदर वर्ड्स, लेकिन कोई पर्टिकुलर रिलीजन का है या पर्टिकुलर कोई स्पेसिफिक ग्रुप का है, तो वो कोशिश करेगा अगर वो बाइस्ड और प्रेजुडिस है कि वो बात रखे जो उसके ग्रुप को, उसके रीजन को, रिलीजन को फ़ायदा दे, which is unfortunate. It should not be the case. Trained personnel. Well, the interviewers must be thoroughly trained and unbiased, otherwise they may not be able to collect the information. मेरे बच्चों, आजकल किसी से बात करवाना ये आसान नहीं है। लोग खाली थोड़ा ना बैठे हैं, बहुत बिजी हैं। तो आपको टैक्टफुल होना चाहिए, आपको ट्रेंड होना चाहिए हाउ टू फर्स्ट कन्विंस पीपल टू आंसर एंड देन मेक देम एंगेज इन द कॉन्वर्सेशन, सो दैट वो पूरा का पूरा जो आप चाहते हो सारी इन्फॉर्मेशन निकाल के दे। उसके लिए यू नीड ट्रेनिंग। सुटेबिलिटी, कब ये मेथड अच्छा है? सो व्हेन डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन हैज़ टू बी कलेक्टेड, व्हेन एरिया ऑफ इन्वेस्टिगेशन इज लिमिटेड, व्हेन नेचर ऑफ इंक्वायरी इज कॉन्फिडेंशियल, व्हेन मैक्सिमम डिग्री ऑफ एक्यूरेसी इज नीडेड, व्हेन ओरिजिनल डेटा इज रिक्वायर्ड। नेक्स्ट है इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन। नाम से पता लग रहा है बेटा, इनडायरेक्ट। So, under this method, the investigator approach third parties who are in possession of information about the subject of inquiry. इसके बाद मैं सीधा एग्जाम्पल ले रहा हूँ, फिर ये पॉइंट्स पढ़ेंगे। एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल, वी वांट टू स्टडी द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ अ कॉलेज हु स्मोक। फॉर दिस पर्पज personal investigation cannot be successful as students may not provide correct information. To get the information, the investigator has to contact the person like their friends, relatives, teachers, nearby shops selling cigarettes, or the persons who know this information. तो इस मेथड में जिस चीज़ की इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए या जिस व्यक्ति की इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए, आप उससे नहीं पूछ रहे, आप थर्ड पार्टी से पूछ रहे हो जिसको उस व्यक्ति की इन्फॉर्मेशन है। इसके बारे में कुछ और पढ़ते हैं। दिस मेथड इज यूज व्हेन द एरिया ऑफ इन्वेस्टिगेशन इज वेरी लार्ज और द रिस्पोंडेंट्स आर रिलक्टेंट टू पार्ट विद द इन्फॉर्मेशन ड्यू टू वेरियस रीजंस। जैसे हमारे एग्जांपल में बच्चा खुद थोड़ा ना बोलेगा मैं स्मोक करता हूँ। The investigator prepares a list of questions and these are asked from different persons and their answers are recorded. Well, the persons to whom these questions are put are known as witnesses. So here relatives, friends, teachers, nearby shops will be considered as witnesses. Merits. कवरेज वाइड है बेटा, काफ़ी एरिया कवर कर सकते हो। इकोनॉमिकल पड़ता है क्योंकि एक ही बंदे से आप पूछ सकते हो। बायस नहीं हो सकता इन अ सेंस कि जो आपका, जैसे इस केस में पुराने वाले में ना, अगर आपका बंदा बेकार है तो वो पर्सनल प्रेजुडिस कर सकता है। यहाँ पे आपके पर्सनल बंदे के हाथ में तो कोई पावर ही नहीं है ना, वो तो थर्ड बंदे से पूछ रहा है। और एक्सपर्ट ओपिनियन भी ले सकते हो। कई बार क्या होता है बेटा, आप जिसके बारे में इंफॉर्मेशन लेना चाह रहे हो उसे खुद ही नॉलेज नहीं है, ठीक है, समझ रहे मेरी बात। ऐसे में एक्सपर्ट ओपिनियन ही चाहिए होगा आपको। एक्सपर्ट ओपिनियन के फायदे क्या है? एक तो जिसकी इन्फॉर्मेशन चाहिए वो खुद ही नहीं वेल इक्विप्ड उस इन्फॉर्मेशन को देने के लिए, और दूसरा अगर वो देता भी है तो वो कच्चा पक्का देगा, उससे आप कुछ कॉन्क्रीट निकाल नहीं सकते। तो एक्सपर्ट ओपिनियन इज द बेस्ट वे, और वो ये इसी मेथड के अंडर आएगा। डीमेरिट्स, इनडायरेक्ट इन्फॉर्मेशन है बेटा, फिल्टर होकर आ रही है थर्ड पार्टी से। एक्यूरेसी मे और मे नॉट बी देयर। पार्शियलिटी, अब पार्शियलिटी किसकी है? उस बंदे की जिससे आप पूछ रहे हो। अब मैंने पूछा भैया मोहन से कि राजू स्मोक करता है, मोहन के राजू से लड़ाई हो रखी थी, मोहन ने कहा हाँ स्मोक करता है, वो तो दिन की 10 सिगरेट फूकते थे, जबकि असल में बात थी कि उसने आज तक सिगरेट टच भी नहीं करी। तो यहाँ पे पार्शियलिटी उसके बेसिस पे हो सकती है जिस थर्ड पार्टी से आप पूछ रहे हो। लैक ऑफ इंटरेस्ट ऑफ इन्फॉर्मेंट्स, ऑब्वियसली कई बार ये होता है आप पूछने का कि प्लीज़ इन्फॉर्मेशन दो, तो वो कहता है यार मेरे को क्या करना उसके बारे में, मेरे पास टाइम नहीं है, मैं बहुत बिजी हूँ। तो सुटेबल कब है ये? जब एरिया ऑफ इन्वेस्टिगेशन बहुत लार्ज हो, जब सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन चाहिए हो, सीक्रेट, व्हेन द प्रॉब्लम ऑफ इन्वेस्टिगेशन इज कॉम्प्लेक्स, एक्सपर्ट ओपिनियन चाहिए हो, और जब कंसर्न इन्फॉर्मेंट्स जो है ना वो कहते हो यार मैं नहीं दे पा रहा अपनी इन्फॉर्मेशन, या मेरे को पता ही नहीं है कुछ, या मैं इंटरेस्टेड नहीं। सो दोनों का डिफरेंस, ये लिमिटेड एरिया के लिए अच्छा है, ये वाइड एरिया के लिए। ये ओरिजिनल है, ये थोड़ा सा ओरिजिनलिटी लैक करता है, ये एक्सपेंसिव है, ये इकोनॉमिकल है, ये ज़्यादा रिलायबल और एक्यूरेट है क्योंकि आप खुद से जाके अपने बंदों से निकलवा रहे हो। ये थोड़ा सा क्योंकि इनडायरेक्ट है तो फिल्टर होकर आएगी इन्फॉर्मेशन, तो उतनी रिलायबिलिटी तो इसमें नहीं है। इन्फॉर्मेशन फ्रॉम कॉरेस्पॉन्डेंट्स, दिस इज द थर्ड मेथड। ये बेसिकली न्यूज़पेपर वाला करते हैं। अंडर दिस मेथड लोकल एजेंट्स और कॉरेस्पॉन्डेंट्स आर अपॉइंटेड एंड ट्रेन टू कलेक्ट द इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द रिस्पॉन्डेंट्स. This method is used when information at regular intervals is required. This method is often adopted by newspaper and periodicals for information about politics, business, sports, etc. Merits, wide coverage है बेटा, जगह जगह फैले हुए कॉरेस्पॉन्डेंट। इकोनॉमिकल पढ़ता है, स्पेसिफिक पर्पस के लिए, लाइक स्पोर्ट्स के लिए अलग कॉरेस्पॉन्डेंट बनाए हुए न्यूज़पेपर्स वालों ने, पॉलिटिक्स के लिए अलग, फिल्म के लिए अलग, और कंटिन्यूटी रहती है क्योंकि वो रेगुलर बेसिस पे काम करते हैं मेरे बच्चे आपके लिए। डीमेरिट्स, पार्शियलिटी,
वेल मेरे बच्चों, ये जो अखबार वाले हैं ना, हो ये डेटा को क्या मैनिपुलेट करते हैं, क्या इन्फॉर्मेशन मैनिपुलेट करते हैं, दे आर वेरी वेरी पार्शियल, ट्रस्ट मी। एजेंडा चलाते हैं साथ में, तो फिर ये पार्शियलिटी अगर रहेगी तो एक पर्टिकुलर न्यूज़ को भी आप कैसे घुमा के अजीब सी फिल्टर बना दोगे, अजीब सा फिल्टर उसको दे दोगे, तो अलग ही दिखेगी वो न्यूज़। मतलब किसी की लड़ाई हो गई चोरी चकारी में, किसी ने चोरी करी, और न्यूज़ क्या छाप देंगे कि रिलीजन के बेसिस पे लड़ाई हो गई है। डोंट यू थिंक हाउ बैड इट इज़, बट दीज पीपल डू। तो ये पार्शियल हो सकते हैं और फिर एक एजेंडा लगा सकते हैं। टाइम कंज्यूमिंग है क्योंकि कलेक्ट करने में टाइम लगता है इन्फॉर्मेशन, और यूनिफॉर्मिटी बिल्कुल भी नहीं है जी। एक ही न्यूज़ पर चीफ न्यूज़ एडिटर ने 4 कॉरेस्पॉन्डेंट भेजे, चारों अलग अलग इन्फॉर्मेशन लेकर आए, और ये आपका जो चीफ न्यूज़ एडिटर है ये वही न्यूज़ छापेगा जो उसके एजेंडा को सेटल करेगी, जो उसके एजेंडा को आगे बढ़ाएगी। सो यूनिफॉर्मिटी नहीं रहती। सूटेबिलिटी, वेल रेगुलर इन्फॉर्मेशन चाहिए हो, एरिया ऑफ इन्वेस्टिगेशन काफ़ी चाहिए हो, ज़्यादा हो, और हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी इज़ नॉट रिक्वायर्ड, क्योंकि आगे अगले दिन पे माफ़ी मांग लेते हैं ये कि गलत छाप दिया था जी। Telephonic interviews. Under this method, data is collected through an interview over the telephone with the interviewer. This method is better in the cases where the respondents are reluctant to answer certain question in personal interviews. Merit, coverage बहुत ज़्यादा है, इकोनॉमिकल पड़ता है, फ़ोन ही तो घुमाना है, और डाउट्स आप क्लियर कर सकते हो। कई बार क्या होता है, आमने सामने ना बंदा झिझक जाता है, कोई पर्सनल क्वेश्चन का आंसर देना हो, फ़ोन पे थोड़ा फिर भी दे सकता है आंसर। डीमेरिट, लिमिटेड यूज़ है, जिसके पास फ़ोन है वही यूज़ कर पाएगा। आपको अगर फ़ोन तो सबके पास होता है, ना मुन्ना ना, गांव में बड़ी गरीबी, अभी भी फ़ोन नहीं है बहुत लोगों के पास, और विजुअल फीडबैक नहीं मिलती, आपको ये नहीं पता चल पाता कि सामने वाला कैसे एंजॉय कर रहा है। इस वक्त आप मेरा वीडियो देख रहे हो, अब मुझे क्या पता आप एंजॉय कर रहे हो या कान में उंगलियां घुमा रहे हो, तो वी डोंट नो। नेक्स्ट है मेल क्वेश्चनर मेथड। Under this method, the investigator makes a questionnaire pertaining the field of investigation and send it to the respondent along with a covering letter to collect information from them. Well, it consists of a list of questions and blank spaces are left for writing answers. Usually a self-addressed stamped envelope is enclosed for returning the questionnaire by post. तो ये पहले के ज़माने में ज़्यादा होता था, आजकल क्या हो रहा है, nowadays ऑनलाइन सर्वेज SMS वो ज़्यादा पॉपुलर हो गए हैं। मेरिट्स, अगेन वाइडर कवरेज है, इकोनॉमिकल पड़ता है, ओरिजिनल डेटा होता है, सीधा उस बंदे से ही लेते हो आप जिस बंदे की इन्फॉर्मेशन चाहिए, और बाइस भी नहीं हो सकता क्योंकि आप उसी के थ्रू भरवा रहे हो सारा। डीमेरिट, लैक ऑफ इंटरेस्ट। अब आप बताइए कितनी बारी आपको मेल्स आते हैं कि ये सर्वे भर दो। इनफैक्ट यूट्यूब ये भी आप देख रहे होगे, स्टार्टिंग में आते हैं सर्वे और आप क्या लिखते हो, स्किप सर्वे। आप किस पे प्रेस करते हो, स्किप सर्वे, तो लोग इंटरेस्ट लेते ही नहीं। टाइम कंज्यूमिंग है, कौन इतना बैठे देखे, ये सब टाइम ही नहीं लोगों के पास। लिमिटेड स्कोप है, जहाँ पे एजुकेटेड लोग होंगे वही कर सकते हैं, और एक्यूरेसी और प्रिसीशन उतना नहीं है इस मेथड का। सूटेबिलिटी, जब इन्वेस्टिगेशन का फील्ड लार्ज हो और जब आपके रिस्पोंडेंट जो हैं वो लिटरेट हों। क्वेश्चनर फिल्ड बाय न्यूमरेटर्स, यहाँ पे खुद ही पहुंच जाते हैं भाई। अंडर दिस मेथड द न्यूमरेटर पर्सनली विजिट इन्फॉर्मेंट्स अलॉन्ग विद द क्वेश्चनर, आस्क क्वेश्चन एंड नोट डाउन द रिप्लाइज इन द क्वेश्चनर इन हिज ओन लैंग्वेज। The enumerator assists the informants to understand the nature of question and note down their replies. This method is usually used by government, semi-government organization, research institutes, etc. Merits, coverage अच्छी है, reliability है, और illiterate लोगों के केस में तो बहुत अच्छा है क्योंकि आप उनकी हेल्प कर सकते हो, उनके बिहाफ पे जवाब भर सकते हो। Demerits, कॉस्टली है, आपके पास तगड़े बंदे होने चाहिए, ट्रेंड, उनकी रेम्यूनरेशन देखनी पड़ेगी, उनका कन्वेंस सब आपको देखना पड़ेगा। टाइम कंज्यूमिंग बहुत है, न्यूमरेटर अगर इनेबल्ड हुआ तो वो नहीं करवा सकता काम, वो ले नहीं सकता काम, क्योंकि उसको खुद ही तो भरने हैं। अगर उसको खुद ही ट्रेनिंग नहीं है या खुद ही उसको वो पैशन नहीं है या नॉलेज नहीं है, तो वो कैसे सामने वाले से इन्फॉर्मेशन निकाल पाएगा। सूटेबिलिटी कब है बेटा, जब आपके पास अच्छा पैसा हो लगाने के लिए, खर्चा करने के लिए, और ट्रेंड न्यूमरेटर्स हो, वाइड फील्ड को कवर करना हो आपको, लार्ज इन्वेस्टिगेशन हो आपकी, और एक्यूरेसी आपको चाहिए हो। तो ये हमने कुछ मेथड्स देखे पर्सनल। अभी हम आगे इसको पार्ट 2 ऑफ वीडियो में बनाएंगे क्योंकि एक साथ वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा एंड दैट विल गेट अ बिट बोरिंग। तो इसका आगे का हम पार्ट 2 इस वीडियो का पार्ट 2 में देखेंगे। आई होप दिस वीडियो हेल्प्स।